Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rafael BBA College Vapi, and I am going to teach you elements of strategic management subject, and we will continue our first chapter, conceptual framework for strategic management. Today, in this session, we will learn about stakeholders and their expectation. So today we discuss about stakeholders and their expectation. Now, stakeholders are those who are directly or indirectly connected with the organization. So, who are the stakeholders? Stakeholders such as shareholders, other financier, employees, customers, creditors and suppliers, government and the society. Now we all know that among these stakeholders, some of them have high stake in the organization while some may have low stake in the organization. Generally, shareholders have high stake in the organization while government may have low stake in the organization. Therefore, organization has to identify the expectation of various stakeholders that they have from the organization. So we all know that stakeholders कौन है? Shareholders, other financiers, employees, customers, creditors, supplier, government and the society. और हमें पता है कि out of this among these stakeholders, some of the stakeholders का high stake organization में रहता है, while some may have the low stake in the organization. Generally, shareholders have high stake, government का low stake होता है. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि हर एक स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट शेयर होल्डर्स. नाउ शेयर होल्डर्स कौन है? कि शेयर होल्डर्स आर दोज पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन. Now what the shareholders expect from the organization? Shareholders expect that reasonable return on their investment as well as safety of their capital. ने shareholders organization के क्या expect करता है कि जो भी invest किया money उसके ऊपर अच्छे से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, दैट इज रीजनेबल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. और जो भी मनी इन्वेस्ट किया उसका सेफ्टी होना चाहिए, दैट इज सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल. नाउ interest of majority of the shareholders are protected either through participation in management process or through interventions in decision making process. Therefore, organization is expected to utilize the resources in such a way which enhance shareholders value. So shareholders का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि सम ऑफ द शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट किया जाता है इन मैनेजमेंट प्रोसेस और वो लोग को इंटरवेंशंस किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सच अ वे विच एनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू. नेक्स्ट इज अदर फाइनेंशियल्स. नाउ अदर फाइनेंशियल्स कौन है? कि बिसाइड्स शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज are also provided by other financier such as bank, financial institution, etc. And in many of the cases, the contributions are much more than that by the shareholders. यानी शेयर होल्डर से भी ज़्यादा वो किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? अदर फाइनेंशियल का, दैट इज बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो अदर फाइनेंशियल्स क्या एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? कि दे विल बी पेड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट एज स्टिपुलेटेड. ओके, यानी जो भी मनी टर्म लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करना चाहिए एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना चाहिए इन अ टाइम पीरियड, दैट इज दे विल बी पेड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट एज स्टिपुलेटेड. नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर दिस, समटाइम they will appoint their own nominees on the board of directors of the company, and sometime they put restrictions on the payment of dividend to the shareholders also. Clear? Next is employees. Now we all know that employees are what? Employees are the stakeholders in the organization,
by their involvement in organizational process. So employees continuously involved in various organizational process. So what the employees expect from the organization? They expect that it will provide फेयर सैलरीज एंड वेजेस, अच्छे से अच्छा सैलरी और वेज मिलना चाहिए, प्रोवाइड प्लेजेंट एंड मोटिवेटिंग वर्किंग कंडीशन, सिक्योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, and partners in building the organization. Now partners in building the organization means what? कि employees expect that कि हम लोग को एज अ पार्टनर्स ट्रीट करना चाहिए, नहीं कि आउटसाइडर्स ट्रीट करना चाहिए. सो एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट सैलरी वेज अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड पार्टनर्स इन बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन. Next is customers. So customers become important stakeholders because in a present competitive world, every organization focus its attention on winning and maintaining the customer. Now we all know that na customer are the king of the market. So हर एक organization, because competitive market है, so every business organization focus its attention on winning and maintaining the customer. So what the customer expect from the organization? They expect that कि organization provide fair product price with best quality. Okay, product का price reasonable रहना चाहिए with best quality. Then widespread distribution and sales network in procuring the product. किधर भी जाओ product available होना चाहिए. That is widespread distribution and sales network in procuring the product. Honesty in dealing and treating with the customer. Then fair advertisement without any misleading statement. क्लियर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, उसमें एकदम मिसलीडिंग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए. गुड आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ये खाली सेलिंग कर दिया रिलेशनशिप ओवर, ऐसा नहीं. इट शुड प्रोवाइड गुड आफ्टर सेल्स सर्विसेज. सो दिस आर द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. Next is creditors and suppliers. Now creditors and suppliers कौन है? Those who provide raw materials to the organization on a credit basis. Okay, so what the creditors and supplier expect from the organization? They expect that the creation of healthy and cooperative inter-business relations. What do you mean by this? कि एक बार रॉ मटेरियल परचेज किया फिर बाद में ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल परचेस करे. दैट इज हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए. देन प्रोवाइड रेलिवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम करेक्ट और एक्यूरेट होना प्रोवाइड करना चाहिए. एंड मोर इंपॉर्टेंट दैट इज मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ सप्लाईज. जो भी क्रेडिट पे सेल किया है उसका क्विकली पेमेंट हो जाए. सो दिस आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. नाउ गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. दो इट रेगुलेट द बिजनेस बट इट इज मींट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस. हमको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारे बिजनेसेस को खाली इंटरप्ट करता है. नो डाउट कि दे रेगुलेट द बिजनेस, बट ये रेगुलेशन किसके लिए होता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स लाइक लॉ अबाइडिंग सिटीजन. लॉ अबाइडिंग सिटीजन मतलब इच एंड एवरी लॉ फॉलो करे. नेक्स्ट, पे रेगुलर टैक्सेस एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज. वॉट एवर टैक्सेस ऑन टाइम पे कर दे, एनी गवर्नमेंट ड्यूज ऑन टाइम पे करे. डज नॉट करप्ट एनी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि कोई भी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को करप्ट नहीं करना चाहिए. एंड डज नॉट बाय एनी पॉलिटिकल फेवर, कि कोई भी पॉलिटिकल फेवर को परचेज करना नहीं चाहिए. सो दिस आर द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट इज सोसाइटी. नाउ वी ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विदिन अ सोसाइटी एंड इट इज अ सोशल सिस्टम एंड गेट various facilities from it. Therefore, organizational objectives should be matched with those of the society's need and expectation.
ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है एंड ऑपरेट विद इन द सोसाइटी। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑलवेज मैच विद दोस ऑफ द सोसाइटीज नीड एंड एक्सपेक्टेशन। नाउ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कि सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है। फर्स्ट, शुड मेंटेन फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, यानी एकदम फेयर बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए, कोई मिसलीडिंग और सोसाइटी को हार्मफुल प्रैक्टिस फॉलो करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सेटअप सोशली डिजायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइक स्कूल्स कॉलेजेस सब डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना चाहिए। हेल्प इन क्रिएटिंग बेटर लिविंग कंडीशंस, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे के, अच्छे से सैलरी दे के हेल्प इन क्रिएटिंग बेटर लिविंग कंडीशन। देन सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि हाउ डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, लाइक डोनेशन कैंप अरेंज करना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। सो ये टाइप के एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि हाउ द डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो दिस आर द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड their expectations that they have from the organization. Clear everyone? Okay, now in next session we will discuss very important topic, that is strategic management. What do you mean by strategic management? Then after process, implication, in short chapter 1 ka part B, it is very important from the examination point of view, that is strategic management. So in the next session we will discuss the strategic management. Okay, bye, take care.